Hello, children, class 7. As you know, I have already begun the series of telling you answers of Spark English Grammar Book Exercise Solution. And first chapter, second, already told you. Now, this is a turn of lesson second sentences. And if you want to watch videos regarding Ratna Sagar publication book, word to word explanation, and question answers solution, then you can go to channel and check the playlist. And thank you so much, guys, for supporting me. Thank you so much. So, guys, here is the solution of this third chapter sentences. The very first is given here. Give two examples each for the kind of sentence listed below. So, you have to give two examples of like interrogative sentence, then command, assertive sentence, negative sentence, request, and exclamatory sentence. As I have given here, first is here interrogative sentence. Interrogative means in which you will make a question. So I have made first question, where are you going? Second question, do you like to read storybooks? Second is here command. So you have to write two examples of command, like open the door, switch on the button. The next is like assertive sentence. Assertive means like very simple sentence. He is a good teacher. He is a humble man. Next is a negative in which you will use not word. So like she doesn't play tricks. We don't go outside. It's raining. Like fifth one is given here request. So what request? Please bring me a glass of juice. Would you please hold my bag for a while? Next is your exclamatory, in which you have to use exclamation sign like happy birthday Aryaman. Wow, I really like it. The next one is given here. Underline the subject and circle the predicate in each of the following sentence. So means you have to underline subject and circle predicate. I couldn't underline a circle, but I have written separately what is subject. What is subject? In the beginning. In the beginning, name of person, name of place, or pronoun words are your subject. And the word which is your sentence, which is used, which is begin from helping verb or verb, that will be your predicate. So let's begin here. Like what is subject here? Subject is here the children, the children, and predicate reached home tired and dirty. Reached home tired and dirty. Next is Gopal. Gopal is your subject, and through is your form of verb. So through huge stone into a well. So this is the whole sentence remain पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट क्या होगा अगर आपको किसी का नेम प्लेस नेम या ही शी इट कुछ भी गिवन है दैट इज योर सब्जेक्ट और अगर उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब से लेकर के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जितना बचता है वो आपका क्या होता है प्रेडिकेट होता है या फिर आपका किसी वर्ब से स्टार्ट होता है लाइक जैसे इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड इनसे स्टार्ट होता है तो वो सारा आपका प्रेडिकेट है या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है दैट इज ऑल्सो योर प्रेडिकेट like third one all the horses your subject sprang is your form of verb so sprang up together is your predicate the girl in the pink dress वो गर्ल जो पिंक ड्रेस में है ये सारा आपका सब्जेक्ट होगा जो वर्क्ड आ गया ये फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी वर्क्ड आई है तो वर्क्ड से लेकर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा नेक्स्ट लाइक सब्जेक्ट है आपका अ ब्लू बटरफ्लाई ब्लू बटरफ्लाई आपका सब्जेक्ट है फिर होवर्ड जो होवर्ड है यहाँ पर आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा द कैट आपका सब्जेक्ट है रन फिर से आपका जो रन है वो क्या आ गया रन जो आपका वो क्या आता है फॉर्म ऑफ वर्ब सो वहां से लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है अब वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज हेल्पिंग वर्ब से लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट सब्जेक्ट फिर से माई कजन है फिर इज आ जाता है आपका माई कजन इज अ म्यूजिक कंपोजर सो इज से लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट होगा अब अ बॉय आपका फिर से सब्जेक्ट है अब उसके अ बॉय के बाद वर्क्ड आता है तो वर्क्ड से लेके सारा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा ऐसे सब्जेक्ट है शीना ड्रिंक्स है तो ड्रिंक आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है ड्रिंक से लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट
जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, ये भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आर प्लेइंग इन द पार्क गिवन है, तो आर से लेके, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो आप से लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट। नेक्स्ट द डॉक्टर रश्ड, सो द डॉक्टर इज योर सब्जेक्ट एंड रश्ड इज योर फॉर्म ऑफ वर्ब, सो विद द फॉर्म ऑफ वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। I guess subject and predicate point is clear to you, that how to identify, like how to identify with the helping verb as well as with the form of verb that will be your predicate. Next is your rearrange the sentence. You have to rearrange all the these words here and make a sensible sentence here. So what is, like, he is interested in cricket. Second, Jake and Jill went up the hill. Next, Humpty fell and had and his head broke. The next one is the fourth, like the big fat pumpkin rolled down the hill. Okay, so this is the rearranged of the sentence. We went to the animal farm last summer. So these are your rearranged sentences here. B1 is given here. You have to tell the type of sentence. What kind of sentence is this? Like please, प्लीज यू ऑलवेज से इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तभी हम प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। सो प्लीज जहां पे आ गया वहां पे आपके रिक्वेस्ट आ जाते हैं। शट द डोर, कमांड दे रहे हैं। गेट आउट ऑफ माई वे, ये भी कमांड दे रहे हैं। रन फास्ट, जल्दी चलो जल्दी भागो, मीन्स एडवाइज, आप उसको एडवाइस दे रहे हो। बी देयर एट 8 AM, कल यहाँ पे 8 बजे आपको होना है, मीन्स टू से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो किसी को। द नेक्स्ट इज लाइक यू शुड ड्रिंक वाटर प्रॉपरली। अब शुड मतलब एडवाइस दे रहे हो, आपको एक करना चाहिए, मीन्स यू आर एडवाइजिंग समबडी, सो एडवाइस विल कम हियर। नेक्स्ट इज लाइक प्लीज हेल्प, फिर से प्लीज आ गया तो आपके रिक्वेस्ट आ जाते हैं। डोंट लीन आउट ऑफ द विंडो, सो ये क्या है, आपको किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है, मीन्स एडवाइस दे रहे, तो ये आपकी एडवाइस आ जाती है। वी शुड सर्व आवर नेशन, सो हम फिर से शुड आ गया, हमें काम करना चाहिए, हमें काम नहीं करना चाहिए, सो दीज आर योर एडवाइसेस। नेक्स्ट प्लीज वर्ड फिर से, तो मीन्स ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट इज रीअरेंज, वंस अगेन आपने रीअरेंज करना है, और सिमिलरली आपने जो एक्सक्लामेटरी साइन बनता है तो वो आपने पीछे लगाना है। What a lovely sight is it? What a tall tree is it? How intelligent is Julie? How smart of her? What an idea. So you have to just make sure that you are using exclamatory sign also here. The next one is how, oh horrible. So oh, how horrible. This is your sentence. Next one is you have to rewrite the following declarative sentence as interrogative. Means these sentences are declarative. These sentences are declarative. You have to change this in the interrogative. Means आपके simple sentences हैं, उन simple sentences को आपने किसमें change करना है, आपको change करना है interrogative में। इंटेरोगेटिव में आपने इसको चेंज करना, मीन्स आपको क्वेश्चन बनाना है इसका। तो देखो यहाँ पर क्या, देखो जैसे विक्रम ब्रोक है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स आपको पास्ट टेंस में इसका क्वेश्चन बनाना है। तो पास्ट टेंस में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। डिड विक्रम ब्रेक, अब डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो डिड विक्रम के बाद आपको ब्रेक लगाना है, ब्रोक नहीं लगाना यहाँ पे, द चेयर। नेक्स्ट वन जैसे यहाँ पर है माई हाउस इज इन द, अब देखो हेल्पिंग हुए तो हेल्पिंग हुए आप हमेशा पहले लगा देंगे जब आपने क्वेश्चन बनाना। लाइक माई हाउस इज इन मालाबार हिल्स, तो इज पहले लगा दो, इज माई हाउस इन मालाबार हिल्स। द नेक्स्ट वन लाइक आई हैव कम टू मीट माई सिस्टर, अब हैव यहाँ पे है तो हैव को हम पहले लगा देंगे, हैव आई कम टू मीट माई सिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज लाइक आई मेट, अब मेट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब फिर से हमें पास्ट टेंस में हमने क्या बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो क्या बनेगा आई मेट, तो हमें यहाँ पे डिड से क्वेश्चन बनाना होगा, तो यहाँ पर हम डिड आई मीट, अब फिर से मैंने क्या किया, डिड के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई, मैंने मेट नहीं लगाया, मेट तो सेकंड फॉर्म थी, हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करना, क्योंकि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। अगर हमारा क्वेश्चन डिड में होता है तो हम हमेशा आंसर उसका सेकंड फॉर्म में देते हैं। इस सिमिलरली अगर हमारा सेकंड फॉर्म में आंसर गिवन है और उसका क्वेश्चन बनाना है तो हमें थोड़ा अपोजिट चलना पड़ेगा और हमें डिड का यूज करना होगा। नेक्स्ट इज टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो इज हमारा पहले आ जाएगा, इज टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान। शी लिव्स हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर क्वेश्चन बनाना है तो डू या डज का यूज करते हैं, और शी के लिए हम हमेशा डज का यूज करते हैं। ओके, सो डज शी लीव फॉर कॉलेज टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट लाइक the glass is green after the rain, sorry the grass is green after the rain, so यहाँ पर grass is green, is पहले आ जाएगा, is the grass green after the rain।
द वेदर इज वार्म, तो फिर से इज हेल्पिंग वो पहले आ जाएगी, इज द वेदर वार्म एंड सनी, एंड यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन इट. The next one is given here. State whether the following sentence are declarative, interrogative, imperative और exclamative. मीन्स आपको ये बताना कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप के हैं. ओके, लाइक प्लीज, जहां पर रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, ऑर्डर होते हैं, तो कौन सा होता है, इंपेरेटिव होता है. विल यू कम इन, क्या तुम आओगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जहां पे पूछ रहा है वो इंटेरोगेटिव होता है. वे यू हैव, फिर से क्वेश्चन पूछा, इंटेरोगेटिव हो गया. नेक्स्ट, लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, तो ये क्या था, जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, मीन्स वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है. आई नो योर सिस्टर वेल, आई नो योर सिस्टर वेल, मैं तुम्हारी सिस्टर को अच्छे से जानता हूँ. तो ये जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको डिक्लारेटिव में, असर्टिव में हम इसको यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज लाइक माइन इज लिव्स इन न्यूजीलैंड. सो हमने क्या कर रहा है यहाँ पर, वो डिक्लेयर कर रहा है, सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लारेटिव है. डू इट इमीडिएटली, इसको जल्दी करो, इंपेरेटिव है क्योंकि आप किसी को कमांड दे रहे हो. बी केयरफुल, बी केयरफुल मीन्स यहाँ पर क्या आपको बहुत केयरफुल रहना है, और एक्सक्लामेटरी साइन पीछे, इट मीन्स आपका ये एक्सक्लामेटरी है. नेक्स्ट, वॉजेंट द वेल डीप, क्या ये जो वेल है ये डीप नहीं है, तो क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क मीन्स इंटेरोगेटिव आएगा. द बॉल रोल्ड स्लोली इनटू द गोल, मीन्स डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर, तो डिक्लारेटिव सेंटेंस होगा. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर, ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. तो यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस. बट अगर टू सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन आता तो आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स. तो ये आपका पहला जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंजक्शन आ गया, कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है. फिर आपका फिर से कंजक्शन यूज हुआ, जैसे सो दैट का यूज हुआ, फिर से कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है. फोर्थ वन आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि इसमें बड़े सारे कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का यूज करके जो बहुत ज्यादा लंबा बना हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस, और यहाँ पर काफी जैसे कंजक्शन का यूज किया है, और 3-4 सेंटेंसेस कनेक्टेड है, तो इट मीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है. नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर कंजक्शन यूज हुआ, तो फिर से क्या, ये कंपाउंड सेंटेंस है. ओके, अब नाउ हियर यू हैव टू लर्न विद फन. सो आपको यहाँ पर 2 डिक्लारेटिव, 2 इंपेरेटिव, 2 इंटेरोगेटिव, 2 एक्सक्लामेटरी यहाँ पर सिलेक्ट करने कौन कौन से, उनकी नंबरिंग आपको यहाँ डालनी है. तो यहाँ पर द स्टूडेंट आर पेंटिंग सीनरी, तो ये आपका डिक्लारेटिव, तो आपको डिक्लारेटिव में नंबर 1 यहाँ पे डालना है. व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या डेट है, तो क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटिव, तो 2 नंबर आपने इंटेरोगेटिव में डाल देना. ओह व्हाट अ लवली प्लेस, ये एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेटरी में नंबर 3 डाल देना है. देन स्टैंड स्टिल, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, कमांड दे रही, इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव 4th नंबर यहाँ पे डलेगा. दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ पोइट्री, तो ये यहाँ पर 5th वन, या कुछ डिक्लेयर कर तो डिक्लारेटिव में 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट और 5 यहाँ पे आ गए. देन व्हाट शुड वी डू, यहाँ पर एडवाइस है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेरोगेटिव, तो 6 आपका इंटेरोगेटिव में यहाँ नंबर डालना है. नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, तो यहाँ पर फिर से एक्सक्लामेटरी है, तो यहाँ पर आपको नंबर 7 एक्सक्लामेटरी में डालना है. और नेक्स्ट बचा लीव दैट अलोन, तो ये एक तरह से आपको क्या कर रहा है, कोई ना कुछ ऑर्डर दे रहा है, आपको कमांड दे रहा है, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में 8 नंबर यहाँ पे आएगा. So this was the solution of sentence, and very soon you will get rest of the chapters solution also on the same channel. If you have demand of any of the chapter, you can write me in the comment. Thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody.